हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क कैसे अराइज होता है कैपिटल बजटिंग में एंड देन व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स टू मेजर दिस रिस्क। Like we know that when we start a project, first of all we make an investment in zero time period, which is also called as I0, means initial outflow. So then we make estimation of a life of project. Suppose life of project is given to be 3 years. And then we determine what will be expected cash inflow in future. It means cash inflow these are expected. Suppose our estimated that cash inflow will be in first year, it will be 10,000, then it will be 12,000, and then it will be 50,000. But we know that in market there is uncertainty. So, but there is uncertainty. And why this uncertainty arises? This is due to happening of different events. Events can be like it can be boom in the market, it may be stability in the market, it may be recession in the market. So when we expect a boom in the market, cash inflow may be higher. Like in first year, our estimated cash inflow will be 10,000, but it may be 15,000. But in stability, it may remain constant. But in case of recession, it may be lower. Suppose you 5,000. Similarly, in second year and third year, cash inflow will fluctuate. So it may be from 12, it may become 18,000. In stability, it will remain same. And in case of recession, it will be reduced. Suppose 6,000. Similarly, for a third year. So it means now you say why there is a risk. So if you calculate what is our average cash inflow, so average is this total divided by these are called events. So there are three events: boom, stability, or recession, which is also called three possibilities. So average will be you take this total. So total is becoming 30,000 and divide by number of events. So average is coming to be 10,000, which is this one we have taken. So it means when there is a high cash inflow, so there is a variation which is 5,000 more. And when there is a low cash inflow, this is also variation, but now cash inflow is less by 5,000. It means risk arises due to variation in cash inflow. So we can say that risk in capital investing means project. So arises due to variation in cash inflow. So let us explain it further with example. Suppose there are different projects like ABC, and we have estimated three events like this one: boom, stability, and recession. So we estimate cash inflow. Suppose in project A it is the same 10,000, but in case of project B, so it can be 7, it can be over 12,000. In case of boom, 10,000. In case of stability, and 8,000 in case of a recession. But in case of project C, it can be 15,000, 10,000, and 5,000. So these are different possibilities of cash inflow. So if you take what is the average cash inflow, so we have taken that each event has equal possibility of happening. It means a chance of each event is 1/3 because there are three events. So therefore average cash inflow is you take this total 30,000 divided by 3. This is also 10,000. In second case also 12 plus 10 plus 8, 30,000 divided by 3. This is also 10,000. And in the third case also this is 15 plus 10, 25 plus 5, 30 by 3, 10,000. So you will see average cash inflow is same, but what about variation? In case of different events in a boom, stability and recession. तो इट मीन्स देखिए आप एक्चुअल कैश इनफ्लो को कंपेयर करके हैं एवरेज कैश इनफ्लो से, तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट ए में आपकी कोई वेरिएशन नहीं है.
सो 10 माइनस 10 जीरो, 10 माइनस 10 10 माइनस 10। इट मीन कि डिफरेंस है आपका एक्चुअल कैश इनफ्लो में और एवरेज में, जिसे कहा कि वेरिएशन। तो वेरिएशन का सिंपल मीनिंग है डिफरेंस है। तो आप देखेंगे बी में 12 माइनस 10, तो उसमें आपकी वेरिएशन आ रही है 2000 पॉजिटिव। मैंने कि 10 माइनस 10 जीरो, यानी 1 माइनस 10 जिसे -2। तो इट मीन्स अब बी में कुछ वेरिएशन आ गई है कि आपका एक्चुअल कैश इनफ्लो मे बी हायर आल्सो और मे बी लोअर आल्सो एज कम्पेयर टू एवरेज कैश इनफ्लो। तो जितनी ज़्यादा ये वेरिएशन होगी उतना ज़्यादा हम कहते हैं रिस्क है हमारे प्रोजेक्ट में। जैसे आप देखिए सी में वेरिएशन है 15 माइनस 10 5000 एंड 10 माइनस 10 जीरो एंड 5 माइनस 10 -5 हो गया। तो आप देखेंगे टोटल वेरिएशन इज हाउ मच, तो दिस इज कमिंग टू जीरो। तो वेरिएशन मीन्स वेदर इट इज अपसाइड और डाउन साइड। तो इसमें एवरेज जो वेरिएशन है जिसे कमिंग 2000। तो वेरिएशन में हम साइन असाइन नहीं करते, हम कहते हैं कि सिर्फ कितना डिफरेंस आ रहा है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसकी जो वेरिएशन है जिसे जो 5000, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो बेसिक रूल है हाई वेरिएशन मीन्स हाई रिस्क। तो इट मीन जो मेन मेथड है हमारा प्रोजेक्ट रिस्क मेजर करने का वो होता है वेरिएशन, जिसको हम स्टैट्स में कहते हैं, जिसे ये स्टैटिस्टिकल मेथड जिसे कहा कि वेरियांस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब देखते हैं स्टार्ट करके हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो रिस्क है प्रोजेक्ट में अब इसको आपने कैसे मेजर करना है। तो बेसिक रूल बन गया अब आपका हाई वेरिएशन मीन्स हाई रिस्क। जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतनी ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस होंगी। वेरिएशन को सिंपली हम कहते हैं फ्लक्चुएशन आल्सो। तो अब देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे। तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट। तो मेनली इसमें हमारे 3 मेथड्स चलते हैं, 3 कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट मेथड इज गिवन बाय हिलर। इट इज आल्सो कॉल्ड हिलर्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ मेथड। वो भी हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। और इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। जैसे आपने देखा प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लो राइज होते हैं फ्यूचर ईयर्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्रू आउट लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। और ये जो इवेंट्स होती हैं अब इसकी हम एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी इसका चांस है हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि यदि आपकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है एवरी ईयर, तो इट मीन दिस इज फर्स्ट केस कॉन्स्टेंट प्रोबेबिलिटी। बट समटाइम्स ये प्रोबेबिलिटी आपकी चेंज होती रहती है फ्रॉम ईयर टू ईयर। दैट इज द सेकंड केस अनइक्वल प्रोबेबिलिटी। क्योंकि मीन्स हिलर ने एक मेथड दिया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम CV से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली CV शो करता है कि कितने % वेरिएशन है हमारी। इसका फार्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। अब ये जो आपने वेरिएशन कैलकुलेट किया है इसका नाम है स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन विच मेजर्स वेरिएशन। को फार्मूला बनाता है स्टैंडर्ड डेविएशन और इसको हम डिवाइड करके हैं जो भी आपकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू टाइम्स 100। तो ये शो करता है कितने % आपकी वेरिएशन है, परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन को हम कहते हैं फ्लक्चुएशन कितनी है, कितना डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल में और एवरेज में। तो सेकंड मेथड है हमारे पास जिसके के ऊपर है सेंसिटिविटी मेथड। सेंसिटिविटी में हम ये मेजर करते हैं जैसे आपका कैश इनफ्लो डिटरमिन करने के लिए हमें चाहिए सेमी प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी कितनी है, सेल्स कितनी है। उनमें से कि कोई भी वैल्यू चेंज होती है उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी NPV के ऊपर। तो सेंसिटिविटी मेथड मेजर करके है कितनी परसेंटेज चेंज कितनी आ रही है NPV में। और इसी से रिलेटेड का मेथड आता है सिनेरियो एनालिसिस। सेंसिटिविटी में नॉर्मली हम एट ए टाइम एक फैक्टर की चेंज लेते हैं और सिनेरियो में सभी फैक्टर आपके चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्सेट्रा। तो डिस्कस करेंगे हम सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो। फिर आता है कि जब रिस्क राइज हो गया प्रोजेक्ट में उसको कैसे एडजस्ट करना है हमने प्रोजेक्ट में, जिसे कहा गया एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क इन प्रोजेक्ट में। तो इसके भी 2 मेथड्स हैं। तो एक है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, इक्विवेलेंट, एंड सेकंड है कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। It means mainly we can say that there are 6 methods. Number 1
Hiller coefficient of variation method with a constant probability, Hiller coefficient of variation with an unequal probability, then sensitivity analysis, then scenario analysis, then a certainty equivalent method, and the risk adjusted discount rate method. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट मेथड हिलर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विद कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं कि इस मेथड में आपने रिस्क कैसे मेजर करना है। तो लेट अस सी फर्स्ट मेथड दिस इज अवर हिलर्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड and we are doing it with a constant probability. It means in this case what happens is constant probability means probability of events over different years of life of project is constant. मीन्स डिफरेंट इवेंट्स हैं, जब आपका कैश इनफ्लो फ्लक्चुएट कर रहा है पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी सेम रहेगी फॉर डिफरेंट ईयर्स। फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप का डाटा मिलेगा, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जैसे कि 0 टाइम पीरियड, आपने मनी इन्वेस्ट कर दी प्रोजेक्ट में, गेट इज गिवन सपोज लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज गिवन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर, जिसकी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर जो भी आपको मेंशन की है। फिर आपको डिफरेंट इवेंट्स मेंशन की हैं। सो एवरी ईयर देयर इज सपोज 3 पॉसिबल इवेंट्स, वन इज बूम यानी कि स्टेबिलिटी एंड यानी कि रिसेशन। इवेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, समटाइम वी डिनोट इवेंट्स बाय हाई सेल लो सेल, हाई सेल मीडियम सेल लो सेल, लाइक दिस वे। सपोज बूम की अब आपको प्रोबेबिलिटी मेंशन की है, तो इवेंट को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं आई से, जिसे कहा गया ith इवेंट। प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं पी आई से, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट। सपोज जब आपकी पॉसिबिलिटी है ऑफ बूम इट इज 50%, 30% है स्टेबिलिटी, 20% है रिसेशन। तो नॉर्मली हम इसको डेसिमल में डिनोट कर रखे हैं, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी 0.5, 0.3 एंड 0.2। टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, समेशन जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो 1 है। अब ये आपकी सेम रहेगी फॉर ईच ईयर। अब आपको कैश इनफ्लो जो को मिलेंगे फर्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, दिस विल बी गिवन। सो अवर ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू मेजर रिस्क इन दिस केस। अब अपने इवेंट वाइज चलना है, जैसे बूम है तो उसके कैश इनफ्लो हैं, उसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो लेट अस सी स्टेप 1, जैसे आपके पास 1 to 3 सालों के कैश इनफ्लो है फर्स्ट इवेंट में, इनकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंट रेट आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो जब हम रिस्क एडजस्ट करते हैं नॉर्मली जो डिस्काउंट रेट होता है वो होता है हमारा रिस्क फ्री रेट RF। उसके बेस पर आपका PV फैक्टर आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट R फॉर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। तो मीन्स कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कीजिए PV फैक्टर से, जिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस योर इन्वेस्टमेंट। तो मीन्स आपको डिटरमिन करना है गेट NPV ऑफ ईच इवेंट। तो हर इवेंट की हम NPV कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे NPV ऑफ ith इवेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट। मीन्स फर्स्ट इवेंट के अपने कैश इनफ्लो लेने हैं, उसको PV फैक्टर से किया मल्टीप्लाई माइनस की इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली फॉर सेकंड इवेंट उसके कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कीजिए PV फैक्टर से, यू विल गेट ए टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से जितनी इवेंट्स होंगी उतनी NPV कैलकुलेट हो जाएंगी। अब उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड NPV। उसको हम कहते हैं गेट मीन NPV और भी से कहते हैं एवरेज और एक्सपेक्टेड NPV ऑफ प्रोजेक्ट। इट मीन्स ये पूरे प्रोजेक्ट की हमारी एवरेज NPV आ जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं ENPV। तो इसका फार्मूला क्या है, जो NPV आ रही है 3 इवेंट से उसको मल्टीप्लाई कीजिए उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो किसी NPV ऑफ ith इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ith इवेंट, इसका कर लीजिए आप समेशन। तो दिस विल बी मीन NPV, राइट। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट कीजिए NPV ऑफ ईच इवेंट। अब आपको देखना है कि इस NPV में कितनी वेरिएशन आ रही है, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे उसका रिस्क।
विच इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टेप 3 है अब आपका, सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। उसका फार्मूला ये होता है, पहले हमने हर एनपीवी को कंपेयर करना है मीन एनपीवी से, वो आपकी वेरिएशन आएगी, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स फार्मूला बना क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शो करते हैं जिस सिंबल सिग्मा से, जिसे कहा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। फार्मूला बन जाएगा एनपीवी ऑफ ईच इवेंट माइनस कर को आप एक्सपेक्टेड एनपीवी विच इज एवरेज एनपीवी। ये इसकी आगे वेरिएशन, इसका लेंगे हम स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, यानी टेक से समेशन, और इसका कर लीजिए आप होल स्क्वायर रूट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सेम मेथड है आपका। वहाँ चलता है एक्स माइनस मीन एक्स, उसका स्क्वायर करके हैं इनको प्रोबेबिलिटी। तो देखिए आप विदाउट स्क्वायर रूट रखते हैं उसको हम कहते हैं वेरियांस। तो ये हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, तो जिसे कॉल्ड वेरियांस। तो वेरियांस हो जाएगा विदाउट अंडर रूट, इट मीन्स समेशन ऑफ एनपीवी ऑफ ईच इवेंट माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी, तो जिसे कि विदाउट स्क्वायर रूट। फाइनली फिर आपको देखना है कितने परसेंट वेरिएशन है। तो नॉर्मली जो सी बी हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज वेरिएशन, उसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो प्रोजेक्ट्स में। इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज तो गेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये मेजर करके है बल्कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। तो जो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस वी आर कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वो एवरेज वैल्यू, जो आपकी एवरेज वैल्यू है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम। तो आपका फार्मूला बनाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, एवरेज वैल्यू है आपकी एक्सपेक्टेड एनपीवी, मीन एनपीवी टाइम्स 100। तो सी बी इट यू इक्वल टू कंपेयर रिस्क ऑफ टू प्रोजेक्ट्स, जब आप दो प्रोजेक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नॉर्मली सपोज यू हैव प्रोजेक्ट्स ए बी, दो प्रोजेक्ट्स हैं आपके। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ, सपोज दोनों की एनपीवी सेम आ रही है, एक्सपेक्टेड जो एनपीवी ए की है 5000, बी आल्सो 5000। फिर आपने कैलकुलेट किया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनपीवी, ए में आ रहा है 1000 और बी में है 1200। स्टैंडर्ड डेविएशन शो कर रहा है एवरेज वेरिएशन कितनी है। जब आपकी एनपीवी सेम है एक्सपेक्टेड एनपीवी, इट मीन्स फिर हम डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हाई रिस्क। तो नॉर्मली क्या है, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी तो जिस प्रोजेक्ट है जो हाई रिस्क। बट प्रॉब्लम आती है जब आपका कंपैरिजन होता है, जैसे दो प्रोजेक्ट्स में अब जिनकी एनपीवी डिफरेंट है, सपोज ए और बी में आपने कैलकुलेट किया एक्सपेक्टेड एनपीवी, ए की है 5000 और बी की आ रही है आपकी 7500। फिर आपने देखा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस इज 1000 एंड दिस इज 1200। तो आपका हाई रिस्क है पर इसकी एनपीवी भी हायर है, तो उस केस में हम कैलकुलेट करते हैं सी बी। अब कितने परसेंट वेरिएशन है, तो सी बी आपका बनता है देखो 1000 अपॉन 5000 इंटू 100, दिस इज 20%। और बी की वेरिएशन है 1200 अपॉन 7500 इंटू 100, तो दिस इज कमिंग 16%। अब आप देखेंगे ए में ज़्यादा रिस्क है आपका, सो ए है जो हाई सी बी मीन्स हाई रिस्क। तो बेसिक रूल क्या है आपका, विच प्रोजेक्ट है कि हाई रिस्क, विच है कि हाई स्टैंडर्ड डेविएशन, और वी कैन से कि हाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे आपने देखा स्टेप 4 पे हमने मेजर किया सी बी, फिर आता है कि आपने डिसीजन देना है जिसे कि स्टेप 5। तो मोस्टली ये आस्क विच प्रोजेक्ट है कि लेस रिस्क और विच प्रोजेक्ट है कि हाई रिस्क। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इफ़ एक्सपेक्टेड एनपीवी इज सेम, फिर को आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं प्रोजेक्ट विद तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस बी से भी शो कर सकते हैं या आप सिंबल से शो कर सकते हैं, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है जो हाई रिस्क। बट देखिए आपकी एक्सपेक्टेड एनपीवी डिफरेंट आ रही है, सेकंड पॉसिबिलिटी इफ़ एक्सपेक्टेड एनपीवी इज नॉट सेम, ये आपकी सेम नहीं है, फिर आपको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
कितने परसेंट आपकी वेरिएशन है, एंड हाई CV मीन्स हाई रिस्क. Then we say get project with so higher coefficient of variation CV has high risk. तो CV शो कर रहे हैं फ्लक्चुएशन वेरिएशन, जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगी उतना ज़्यादा हम कहते हैं रिस्क है. तो इस मेथड को हम डिस्कस करते हैं, मेथड 1 को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. So let us see example 1. So this is your based on Hiller's method of coefficient of variation with equal probability or constant probability for different years. इसमें देखिए आपको मेंशन किया है Sun Limited is considering an investment of ₹4 lakh which will generate substantial cash inflow over the next 5 years with the following probability distribution है. तो आपको दिया कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसकी इन्वेस्टमेंट है आपकी 0 टाइम पीरियड में, जिसे जो 4 लाख. फिर आपको दिए हैं फ्यूचर में जो कैश इनफ्लो होंगे ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो लाइफ आपको दी है 1 to 5 ईयर एंड व्हाट विल बी कैश इनफ्लो. तो कैश इनफ्लो की 3 पॉसिबिलिटीज आपको दी हैं. इट कैन बी 50,000, 1 लाख और 1,50,000 प्रोबेबिलिटी गिवन. तो मीन्स इसमें इवेंट का हमें नेम मेंशन नहीं किया है, बट उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है. Event, we can say event first, second and third. What will be cash inflow? Cash inflow can be 50,000. ये आपको मेंशन किया है 50,000. It can be 1 lakh और it can be 1,50,000. Probabilities are given 0.3, then 0.3, 0.2. अब ये एक ही प्रोबेबिलिटी दी है. इट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी आपकी सेम रहेगी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर, एवरी ईयर की सेम. इवेंट्स वाइज डिफरेंट है बट ओवर डिफरेंट ईयर्स इट विल बी सेम. फिर आपको मेंशन किया है एट एंड ऑफ 5th ईयर लाइफ द इन्वेस्टमेंट यू एक्सपेक्ट टू हैव ए रेजिडुअल वैल्यू 40,000. फिर 5th ईयर में आपको रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी. इट मीन्स इन 5th ईयर तो रेजिडुअल वैल्यू सेम है वेदर इट इज फर्स्ट इवेंट, सेकंड और थर्ड. सो यू गेट रेजिडुअल वैल्यू. रेजिडुअल वैल्यू के स्क्रैप ऑफ ऐसे विकी आल्सो कहा गया टर्मिनल कैश इनफ्लो दिस विल बी 40,000. तो हर इवेंट में ये आपका सेम रहेगा. The cost to capital is 10%. Calculate NPV under 3 different scenarios. तो 3 सिनेरियो हैं या 3 इवेंट्स हैं, उनकी NPV कैलकुलेट करेंगे हम 1 by 1. डिस्काउंट रेट आपको दिया है R 10% एंड एक्सपेक्टेड NPV. फिर उसके बेस पर आपको एक्सपेक्टेड NPV कैलकुलेट करनी है एंड आल्सो डिटरमिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके लिए चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन यू कैन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो एडवाइस सन लिमिटेड ऑन वेदर का इन्वेस्टमेंट इज टू बी अंडरटेकन. तो इट मीन्स जब आपकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, ये बन गया आपका फर्स्ट मॉडल हिल्लर्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी. तो लेट अस सी व्हाट इज स्टेप 1. तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है NPV ऑफ ईच इवेंट और वी कैन से ईच सिनेरियो. तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए. तो यू कैन राइट सिनेरियो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. कैश इनफ्लोस आपको दिए हैं देखो 1 to 5 ईयर. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब ये सेम है 1 to 5 ईयर तो आप लीजिए PV फैक्टर फॉर एन्युटी. तो वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 10% फॉर 5 ईयर इज 3.791. फिर आपको मिलेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो लास्ट ईयर में 40,000. उसका PV फैक्टर है आपका एट 10% फॉर 5 ईयर इज 0.621. So let us write what is present value of cash inflow. तो जिसे 50,000 ये एनुटी बन जाएगी 5 ईयर की 3.791 प्लस 40,000 आपको मिलेगा लास्ट ईयर में. तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 0.621. उसमें से माइनस कीजिए आप इन्वेस्टमेंट है आपकी 4 लाख. तो इस तरीके से आपकी NPV आ जाएगी. So now you get NPV of each event. This is 50,000 into 3.791 and plus 40,000 into 0.621. The total minus 4 lakh. So this is coming 185.
610, ये आ रही है आपकी नेगेटिव। देन वी हैव सेकंड इवेंट, तो उसमें आप देखिए कैश इनफ्लो बस 1 लाख हो जाएगा इंटू 3.791 और प्लस लास्ट ईयर में आपको मिल रहा है 40,000 इंटू 0.621 माइनस इन्वेस्टमेंट सेम है आपकी 4 लाख। दिस विल बी NPV। तो दिस इज 3,79,100 प्लस 40,000 इंटू 0.621, so total minus 4 lakh, this is coming to 3940। then we have a third event, इसमें कैश इनफ्लो हो जाएगा आपका 1,50,000 इंटू 3.791 प्लस 40,000 इंटू 0.621, इन्वेस्टमेंट की सेम 4 लाख। तो अब देखिए हर साल आपके कैश इनफ्लो सेम है 5 सालों के लिए, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एनपी फैक्टर से। ये स्क्रैप मिल रही है टर्मिनल कैश इनफ्लो लास्ट ईयर में, उसको मल्टीप्लाई किया लास्ट ईयर के पीवी फैक्टर से माइनस की इन्वेस्टमेंट के तीनों इवेंट्स के लिए सेम रहेगी आपकी। तो वी गेट NPV हेयर 150 इंटू 3.791 एंड 40,000 इंटू 0.621 माइनस अवर इन्वेस्टमेंट, सो 193,490। तो इस तरीके से तीनों इवेंट्स की NPV आ गई है। ये था आपका पहला स्टेप, NPV ऑफ ईच इवेंट। अब आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज NPV, एक्सपेक्टेड NPV या जिसको कहते हैं मीन NPV, फिर उसकी कैलकुलेट करेंगे वेरिएशन। तो सेकंड स्टेप है, उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। तो स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड NPV एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ NPV। तो शो कीजिए अवर इवेंट और सिनेरियो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, NPV ऑफ ईच इवेंट, NPV है आपकी 185,610 नेगेटिव, देन 3,940 एंड 193,490। प्रोबेबिलिटीज आपकी मेंशन की हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट 0.3, 0.3, 0.4। Now what will be mean NPV which is called expected NPV। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं स्टैटिस्टिकली, NPV बिग बार। तो उसका फार्मूला है NPV को बस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, NPV ऑफ ईच इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी, और उसका कर लीजिए समेशन। जिसे कमिंग ये नेगेटिव आ रही है पहले आपकी फर्स्ट वन, तो जिसे 185,610 इनटू 0.3, तो जिसे कि माइनस 55,683, यानी कि पॉजिटिव 3,940 इंटू 0.3, 1182, यानी लास्ट वन इज ऑल्सो पॉजिटिव 193,490 इंटू 0.4 प्लस 77,396। सो टोटल एक्सपेक्टेड NPV इज कमिंग 22,895। ये आपकी आ गई मीन NPV। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ NPV ये NPV ऑफ ईच इवेंट, इसमें से माइनस कीजिए मीन NPV या एक्सपेक्टेड NPV, इसका स्क्वायर कीजिए इंटू कीजिए प्रोबेबिलिटी, देन यू टेक हिज समेशन। तो इसमें सब हमने ये NPV है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये पहले माइनस की है, तो और माइनस करोगे दोनों ऐड हो जाएंगी, इसका करेंगे स्क्वायर। तो एक कॉलम बना रहे हैं हम, NPV माइनस मीन NPV इट्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो लेट अस सी दिस वन, तो 185,610 प्लस हो जाएगा 22,895 दिस वन, इसका कर लीजिए स्क्वायर इंटू करके इक्वल टू, इंटू कर लीजिए 0.3 इंटू 0.3 और इसको डाल लीजिए मेमोरी में। तो दिस इज कमिंग 13,04,23,005,07.5। सिमिलरली सेकंड 3,940, इसमें से इसको कीजिए माइनस, ये नेगेटिव आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर देते हैं, जिसे 22,895 माइनस 3,940 इस स्क्वायर इंटू 0.3 और इसको मेमोरी में आप प्लस कर लीजिए 10,77,876,07.50। सिमिलरली थर्ड वन, तो 193,490 माइनस 22,895, जो बैलेंस आ रहा है डिफरेंस, उसका कीजिए स्क्वायर
into 0.4 probability. So this total is 1164, 106, 1610. So now you take this as summation. When you take this as summation is coming. So this is 24791149725. Now you can calculate standard deviation of NPV. इसका आपको करना है अंडर रूट आल्सो. So this is coming 24791149725. इट्स स्क्वायर रूट. तो आंसर आपका रुपीज में ही चल रहा है. सो यू टेक इस स्क्वायर रूट. दिस इज कमिंग 157,452. दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर आप देखेंगे इस केस में आपकी एनपीवी है 22,895 बट वेरिएशन इज वेरी हाई. सो प्रोजेक्ट हैज वेरी हाई रिस्क. और आप यदि इसका मेजर करते हैं कोएफिशिएंट को वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 157,452 डिवाइडेड बाय दिस वन 22,895 into 100. So how much is variation? 157,452 divided by 22,895. So this is coming to 687.71%. तो जब नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारी जो वेरिएशन है किसी मोर देन 100% आल्सो, जितनी एनपीवी है उससे भी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, इट मीन्स प्रोजेक्ट हैज वेरी हाई रिस्क. उसमें बहुत ही ज़्यादा आपका रिस्क है. So whether we should accept this project, NPV positive है, we should accept, but it has very high risk. So if a firm doesn't believe in high risk, then we should reject this project. इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कैपिटल बजटिंग रिस्क एनालिसिस का मेथड नंबर 1, पिलर्स कोएफिशिएंट को वेरिएशन मेथड टू मेजर रिस्क इन ए प्रोजेक्ट when probabilities of cash inflows are constant for different time periods throughout the life of a project. Risk means variation or fluctuation in cash inflows of a project which is measured by coefficient of variation. Coefficient of variation means percentage of variation in cash inflow or NPV of a project. Coefficient of variation is equal to standard deviation divided by expected NPV times 100. Standard deviation measures absolute variation in cash inflow of a project as compared to average cash inflow. Average cash inflow is a summation of cash inflow weighted by its probabilities. Coefficient of variation is used to compare risk of two projects, and project with lower CV means lower risk and project with high CV means higher risk. फर्दर लेक्चर्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.